Good morning, students. We are studying the chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. And what are the adult features or adult, what are the features of an adult? We have studied. हम लोगों ने पहले इसके अंदर adult के features को देख लिया है. And we have also studied about the reproductive hormones and the role of the reproductive hormones. Okay. Now what we have to use, what we have to study? We have to study about the sex determination. About the sex determination of a child. एक बेबी जो है, चाइल्ड है, उसका मुझे क्या करना है? एक सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है. हाउ कैन वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एनी बेबी दैट इज इन द फीमेल यूट्रस, जो अभी जन्म नहीं ले पा रहा है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन कर रहे हैं. तो डिटर्मिनेशन वैसे होता नहीं है, बट हम लोग इसके अंदर साइंटिफिकली हम लोग टर्म्स के यूज में हम लोग इसको पढ़ेंगे. ओके, वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर 9 दैट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 chromosomes. 46 chromosomes, it means we have two sets of chromosomes, and these 46 chromosomes are categorized into two categories. These are 23 and 23. Two sets of chromosomes we have 23 and 23. Out of these 22 pairs, इनके अंदर से 22 पेयर्स जो हैं 23 में से, और सही है ना, 22 पेयर्स क्या हैं? वो क्या होते हैं? आपके एसेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं. व्हाट इज दिस? एसेक्सुअल क्रोमोसोम्स. इट मींस दे डू नॉट टेक पार्ट इनटू द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, जो 22 पेयर्स है वो क्या है? आपके सेक्स डिटरमिनेशन में पार्ट नहीं कर रहे हैं. हमको पता है 46 का मतलब क्या होता है? 23 पेयर्स. 23 पेयर्स में 22 पेयर्स आर asexual. 22 pairs are asexual, and these are known as, these are common in male and female. तो 22 pairs है वो क्या है? कॉमन है. That's why these are known as autosomes. These are also known as autosomes, and these only controls the physical characters of the body. बॉडी का रंग कैसा होगा? What is the color of hairs? What is the shape of the nose? What is the color of skin? आपका हेड बड़ा होगा या छोटा होगा, फिंगर्स लेंथी होगी या क्या छोटी होगी, तो इनका जो भी कंट्रोल है that is regulated by these 22 pairs of chromosomes, and these are common in male and female. But only the one that take part in the sex determination is known as sexual chromosomes, and these are also known as, these are different in male and female, that's why it is known as allosomes. क्या बोल दिया हम लोगों ने इसको? These are also known as allosomes. But these one pair have different type of chromosomes in male and female. Male में क्या है? देखो आपको, in the male it has X and Y. In female it has X and X, both. 2 X chromosomes are found in the female. तो यहाँ पर क्या है? X and X are same chromosomes and X and Y are different chromosomes. अब क्या है? सुनो इधर, आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता दूं. The male gametes have 2 types of chromosomes. आ रही बात समझ में? उसका जो 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है कौन से हैं? X and Y. समझ रहे हैं? Sperms having X chromosome and sperms having Y chromosome. समझ रहे हैं? जो स्पर्म है आपका वो क्या है? आपका X और Y दोनों टाइप का है. किसके अंदर? मेल के अंदर. आई बात समझ? तो यहां पर क्या है? एग है ओनली सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज X and X. आई बात समझ? मेल्स हैव 2 types of male gametes, that is having X chromosome and having Y chromosome, but the male have
only single type of X, that is having X chromosome and having X chromosome. It means the X have only a single type of X, single type of chromosomes. ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दे विल फर्टिलाइज, ये क्या होंगे आपस में फर्टिलाइज होंगे. तो व्हाट इज द मेथड ऑफ दिस? ओके, बात करें हम लोग आगे. द मेथड इज पेरेंटल मेल. इट इज पेरेंटल मेल, पेरेंटल फीमेल. ओके, पेरेंटल फीमेल. पेरेंटल मेल हैज both X and Y chromosome. Parental female also have X and X chromosome. Okay, आई बात समझ? According to the cell division, according to the heredity laws of Mendel, these genes will separate out from its colleague. ये अपने आप से अलग अलग होंगे. What we have to do? क्या होगा, क्यों होंगे अलग? क्योंकि यहाँ पे 50% ऑफ द कैरेक्टर्स आर ऑफ फीमेल एंड 50% ऑफ कैरेक्टर ऑफ मेल शुड बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग. यहाँ पर 50% कैरेक्टर्स क्या होंगे मदर के और 50% कैरेक्टर्स किसके होंगे फादर के. दैट आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होंगे. ओके, नाउ एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स, X and X. It means the sperm male gametes. What is this? It is 2N cell and it is X and Y. X and Y. तो यहाँ पर भी क्या होगा 23 and 23 इक्वल से बात करें हम लोग तो 1 पेयर 1 पे है ना. तो यहाँ पर X और Y 2 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम हो गए. हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पर्म की बात कर रहे हैं that have X क्रोमोसोम and also Y क्रोमोसोम. तो दोनों अलग अलग एग और स्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग. The sperm having X chromosome when fuses with the egg having X chromosome. What I said? The sperm having X chromosome fuses with the egg having X chromosome. It will develop into a zygote having 2X chromosome. समझ रहे हैं? अगर X क्रोमोसोम वाला स्पर्म X क्रोमोसोम वाले एग से अटैच होता है तो इट विल फॉर्म द जाइगोट हैविंग 2X क्रोमोसोम. ऐसा जाइगोट डेवलप करेंगे, ऐसा जाइगोट बनेगा दैट हैव 2X क्रोमोसोम्स. ओके, व्हेन द स्पर्म्स हैविंग Y क्रोमोसोम fuses with the egg having Y chromosome, it will form a zygote having X and Y both. अब हमको पता है X and Y zygote will develop into the male child because only male have XY chromosome and it is female zygote. It develops into a baby girl. तो what we understand, only and only Y chromosome is the different chromosome in the humans that makes the difference between the male and female. तो कौन सा क्रोमोसोम डिफर कर रहा है? इट इज Y क्रोमोसोम. देखिए यहाँ पे इट हैज बोथ द X एंड X. यहां पर क्या है डिफरेंट, क्या है X. बट Y क्रोमोसोम इज ऑलवेज फाउंड एज द टेल ऑफ X. समझ रहे हैं? मेल के अंदर भी जो Y क्रोमोसोम है दैट इज प्रेजेंट एज अ टेल. उस X की एक पूंछ की तरह लटका होता है इसके तरफ. आई बात समझ में? whenever it सेपरेट आउट फ्रॉम द X से अगर ये सेपरेट हो गया बाय द डिवीजन तो ये क्या करेगा, मेल कैरेक्टर्स को शो कर देगा, अदरवाइज ऑल आर फीमेल. आ रही है में? समझ में आ रहा है? इट मीन्स वी हैव टू कीप इन माइंड द चांसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द मेल एंड फीमेल
इज ऑलवेज 50-50। यहां पर क्या है, 50-50 चांसेस है मेल और फीमेल होने के। इट मीन्स हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि विच इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज मेल एंड विच वन इज फीमेल। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस। यहां पर कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। अगेन बता दूं आपको मैं, whenever the female parental male has XY chromosome, parental female has, parental female का मतलब क्या होता है, मदर, और यहां पर ये कौन है, फादर। फादर के पास क्या है, XY क्रोमोसोम, मदर के पास क्या है, XX क्रोमोसोम। तो whenever they reproduce, जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो the male has two types of chromosome, two types of sperm having X क्रोमोसोम एंड having Y क्रोमोसोम, और जो फीमेल है उसके पास एक ही टाइप के एग है बेटा, having X क्रोमोसोम ओनली। वो किसी भी कंडीशन में X क्रोमोसोम ही देगा। इट मीन्स whenever the X of the male fuses with the X of female, it will produce a 2X. It will produce a zygote having 2X chromosomes. Whenever the Y chromosome of male will fertilizes with the X chromosome, it will form the it will develop as a zygote having X and Y chromosome। तो यहाँ पर डिफर कौन कर रहा है बेटा, अगर इसके प्लेस पे X ही आ जाता तो इट इज ऑल्सो फीमेल, ये भी क्या हो जाती, फीमेल। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज Y। तो यहाँ पर गर्ल और बॉय में डिफरेंस किसने किया, इस Y क्रोमोसोम में। ओके, बट इन आवर कम्युनिटी हम लोग ज्यादातर क्या होता है, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, दैट ऑलवेज ब्लेम द गर्ल और द मदर टू गिव द बर्थ टू द गर्ल चाइल्ड। लड़कियों को पैदा करने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मदर को। बट डिस्क्राइब हो रहा है भाई, मदर क्या करेगी इसमें, मदर के पास तो एक ही टाइप की क्रोमोसोम है, वो किसी भी कंडीशन में एक ही क्रोमोसोम देंगी, एक्स ले सकते हो, एक्स ले सकते हो। बट फीमेल के पास, मेल के पास कौन सा क्रोमोसोम है, वाई। दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर वो वाई क्रोमोसोम ही नहीं आ रहा फादर से, तो हमेशा क्या होगी, लड़की ही होगी। और यह क्या होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हम लोग, उस मदर को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, किसके लिए, बार बार लड़की होने के लिए, जबकि वो हो किसकी वजह से रहा है, फादर की वजह से। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है, दैट इज अ रे डायग्राम स्केच ओनली। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एक्चुअल डायग्राम है, एक्चुअल ग्राफ जो है, दैट विल शो मेल एंड फीमेल। मेल हैज 44 प्लस XY क्रोमोसोम, सबको पता है। फीमेल हैज 44 प्लस XX क्रोमोसोम, ये हमको पता है। बाय द रिप्रोडक्शन, बाय द रॉ ऑफ एयर सेग्रीगेशन, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग जाएंगे। 22 प्लस X, 22 प्लस Y। ओके, इट इज 22 प्लस X, 22 प्लस X, ये किसी भी कंडीशन में आपको X ही देगा। नाउ whenever it fertilizes to this X, it forms the 44 plus XX। ये भी दिख रहा है आपको, 22 and 22 will make 44। This will goes for this 44 plus X and Y। ये 40, अब देखो यहाँ पर क्या है, it is 2n set of chromosome, it is haploid cell, sorry diploid cell, it is diploid cell having 2 sets of chromosome, it is haploid cell having 1 set of chromosome। और जब ये n और n मिल जाएंगे तो it will fertilize as a 2n। ये क्या बना देंगे, 2l। it is male and it is female, 46 chromosome in the male and 46 in the female। तो ये आपका क्या है, आपका सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ये क्या है आपका सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है। इट मीन्स ओनली एंड ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग ऑफ अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय। दोनों में डिफरेंस कौन कर रहा है बेटा,
ओनली एंड ओनली फादर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल नीड है एडल्ट सेल्स की। क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड्स है? साइकोलॉजिकल नीड्स अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स ऑफ सर्टेनिटी, uncertainty and confusion at the age of adolescence, the adults becomes more confusive. वो कैसे होते हैं? confused होते हैं। what changes are having in my body, मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, what changes are going through our body, हमारी बॉडी के अंदर किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और एक प्रेशर वाली कंडीशन उनके ऊपर आ जाती है। ठीक है। सम ऑफ एडोलेसेंट्स बिकम सेल्फ कॉन्शियस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड डेवलप लो सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, नीचा महसूस करने लग जाते हैं वो। ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट एडोलेसेंस इज अ पासिंग फेज एंड इज कॉज्ड बाय द सडन चेंजेस ऑफ हार्मोनल लेवल्स। अब मुझे समझना क्या है, साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये दीज आर नेचुरल चेंजेस, दीज आर नेचुरल चेंजेस, ये हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एडोलेसेंस होने ही है। इफ दे विल नॉट अकर, आवर बॉडी विल नॉट गेट मैच्योर्ड, हमारी बॉडी मैच्योर्ड नहीं होगी, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनल चेंजेस? इट मीन्स the development of different type of hormones or the secretion of the hormones in our body will create some changes in our body that are seen in the change of body। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं ड्यूरिंग द हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन की जो सिक्रेशंस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसके कारण से क्या होंगे, चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। These are natural changes, वो हमारी बॉडी में आएंगे ही आएंगे। एंड आफ्टर सम पीरियड दे विल स्टॉप, वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। इट मीन्स सपोज at the age of 45 to 50 always the periods or the menstrual cycle stops in the female, क्योंकि वो उस कंडीशन में जो ओवरी है that has stopped the production of eggs, उस कंडीशन में एग का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो एक एज के साथ में ये भी क्या हो जाते हैं, टर्न अप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बट एट द एज ऑफ 10 to 19 और 11 to 19 ऐसा होता ही है। ओके, इट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये कौन सी एज है, प्यूबर्टी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये क्या है, 11 इज द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। गर्ल्स के अंदर 11 to 13 होती है ये, एंड इन फीमेल मेल्स इट इज 13 to 16। मतलब गर्ल्स बिकम मैच्योर्ड फास्टर देन द मेल। गर्ल्स क्या होती है, जल्दी मैच्योर्ड होती है देन द बॉयज। ओके, तो ये पूरा चेंजेस था। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आगे आपको जो भी इसकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग इसके अंदर रीड आउट करेंगे। जो भी इसके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है इन द एडोलेसेंस, व्हाट वी हैव टू डू, किस टाइप का कल्चर मुझे अपनाना चाहिए, किस टाइप का फूड मुझे लेना चाहिए, किस टाइप के कपड़े मुझे पहनने चाहिए, वो सारा जो है किस टाइप की मुझे हाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट करनी है, व्हाट वी हैव टू यूज, व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स आई हैव टू एक्वायर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स मेरी बॉडी के अंदर मुझे चाहिए, दैट हैज़ टू मेंटेन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।